السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں خوبصورت معاشرتی روایات کی امین ہماری بزرگ خواتین کے ساتھ گفتگو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بیٹا، آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتی ہیں ہم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا شو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی بڑی محبت۔ اچھا مجھے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ آتی ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں، بہت آپ حکمت اور دانائی کی باتیں بھی بتاتی ہیں۔ ایک ذہن میں سوال میرے اٹھ رہا تھا کہ آپ جب بھی آتی ہیں آپ نے مخصوص لباس ہی پہنا ہوتا ہے، جو جس نے پہنا وہی کئی سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہی پہنتی ہیں۔ بیٹا یہ تو اب یہ رواج پڑ گیا ہے نا، ہر دوسرے دن ہر فنکشن پہ، ہر تقریب کے لیے، ہر آنے جانے کے لیے علیحدہ کپڑے چاہیے ہوتے ہیں آج کل ہماری بیٹیوں کو، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم تو اپنی چیزوں سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ ہمارے پاس تو اپنے بڑے بڑے پرانے سوٹ بھی پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے وہ پہن کے، بلکہ ہم اس پہ فخر کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی جہیز کی چیزیں بھی آج تک سنبھالی ہیں۔ میں تو ایک دفعہ اپنے پوتی کو بتا رہی تھی کہ یہ توا میرے جہیز کا ہے جس پہ روٹی بناتی ہے، تو ہنستی رہی کتنی دیر، کہتی ہے یہ آپ کے جہیز کا توا ہے؟ میں نے کہا آج تک میں نے سنبھالا ہوا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، صرف توا ہی نہیں ہے بیٹے۔ گھر میں ہم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں جو زیادہ پرانی ہیں۔ ہاں نہیں، میں آج بھی اس پلنگ تے سونی ہاں جیڑا میری ماں نے دیتا سی۔ ہم تو اپنی چیزوں سے محبت کرتی ہیں اور یہ بچوں کو سکھانا چاہیے۔ دیکھو جس نے اپنے آپ سے محبت کی ہے اسے اپنی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے۔ اب آپ نے اپنے گھر کے بجٹ بھی بہت بڑھا لیے، صرف اسی سوچ کے وجہ سے کہ چیز نئی ہونی چاہیے، سوٹ نیا ہونا چاہیے، پردوں کو بہت دیر ہو گئی ہے، ان کو بدل دینا چاہیے۔ جی اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ اگر خواتین کو ایک دن میں 3 فنکشنز میں جانا ہے تو ان کو 3 سوٹ چینج کرنے ہیں۔ دیکھو نا ذرا، اس میں بے عزتی محسوس کرتی ہیں، وہی کپڑے پہن کے میں کیوں جاؤں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر وہی گیدرنگ ہوگی جو اس شادی میں تھی۔ بھئی آپ اتنی کمزور ہیں، آپ کی شخصیت اتنی کمزور ہے کہ آپ کپڑوں کی وجہ سے اپنی عزت سمجھتی ہیں۔ آپ کا ملنا جلنا، آپ کی گفتگو ایسی اچھی ہونی چاہیے کہ کپڑوں کی طرف دھیان نہ جائے۔ ماں جی سیدھی بات ہے، آج کل کی خواتین تو نت نئے کپڑے پہن کے اپنی شخصیت کی کمزوریوں کو چھپا رہی ہوتی ہے۔ تے جنید ویاواں شادیاں تے کڑیاں اپنے بچے نہیں چک دیاں کہ میرے سوٹ دا ڈیزائن لک جائے گا۔ آپ ویاواں چ کیٹ واک کر دیاں پھر دیاں نے تے بچے نوکراں نے سانبے ہوندے نے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ یہ لڑکیاں کیوں ایسا سوچتی ہیں کہ ایک ہی سوٹ دوسری دفعہ کیوں پہنا جائے۔ یقین کیجئے بیٹے، اپنی چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے، اور ہم نے فخر کیا ہے۔ ہم نے ساری زندگی خود بتایا ہے کہ میرے اس سوٹ کو 7-8 سال ہو گئے ہیں، میرے اس کپڑے کو 12 سال ہو گئے ہیں، میرے اس فرنیچر کو 25 سال ہو گئے۔ اور ماں جی آج اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے کہ آج یہ لون مارکیٹ میں آئے گی اور سب سے پہلا سوٹ تمہاری بہن نے لیا۔ ہاں مجھے میرے پوتے نے دکھایا ہے اپنے ٹیلی فون میں، یہ جو لون کی اوپننگ ہوتی ہے اور اس میں جو لڑائی جھگڑے اور مارا ماری اور ہوئے 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 ہوئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے نیاز کی دیگ بٹ رہی ہے۔ ہمارے محلوں میں جب کسی نے چاول بانٹنے تو بیچارے غریبوں کے بچے جن کو بڑی بڑی دیر ہو گئی ہوتی تھی میٹھے چاول کھائے ہوئے یا پلاؤ کھائے ہوئے، وہ بیچارے اس طرح ترسے ہوئے بچے ایک دوسرے کو کھینچا تانی کر کے تو چاول دیتے۔ آج یہ اتنی امیر کبیر خواتین اسی طرح جھگڑ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح ہاتھا پائی کر رہی ہوتی ہیں جس طرح وہ
जर्दे की देख के चावल लेने के लिए गरीबों के बच्चे किया करते थे। हाय तेरी हाय मेरा ख्याल है लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं, जर्दे की वजह से निकली। नहीं आहो ਇਹਦੀ ਹਾਏ ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਏ ਤੇ 2-2 ਪਲੇਟਾਂ ਘਰੋੜੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਵਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। माजी अब नए दांत का ये मतलब तो नहीं कि राइस मिल नहीं खाली कर जाए आप। हमारी तो बचपन की सहेली है गोगी, शुरू से ही खुश खुराक है। इसने तो शादी वाले दिन भाई साहब को हैरान कर दिया। दूल्हा दुल्हन बन के बैठे हुए स्टेज पे खाना ला के आगे रखा है लड़कों ने। इसने तो घूंघट वाला दुपट्टा उतार के परे कुर्सी पे रखा और बाजू ऊपर करके शुरू हो गई। दूल्हा इसका बजाय खाने के इसको देखना शुरू हो गया कि ये क्या करने लगी है। पल भर में सारी परातें खाली कर दी। सिर्फ शुरू में एक दफा अपने खामन से कहा कि आप भी खाइए ना। और भाई साहब ने जवाब में कहा क्या? ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਲੜਕੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ। सुला मारने ले तू मशरकी से तो डफाने ले मशरकी नहीं से। ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦੀ ਉਤਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਉਤਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੁਮਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗ ਪਈ। बात हो रही थी अपनी पुरानी चीजों से, अपनी एसोसिएशन की, उस पर फख्र करने की। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੌਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੜਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। नहीं ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਿਆਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੂੰਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ये तो आपस में सहेली हैं तो इन्होंने तो इसी तरह लड़ना झगड़ना भी है। मगर सच्ची बात ये है बेटा कि हम सब अल्लाह के फजल से अपनी चीजों से आज भी मोहब्बत करती हैं, बेशक वो सालों पुरानी हो चुकी है। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਨੀ ਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। क्यों? पूरा जो नहीं आਉਂਦਾ। अच्छा शादी के वक्त स्लिम स्मार्ट होंगी ना, आप तंग हो गया होगा वो सूट। तंग नहीं बेटे, खुला हो गया हुआ है। शादी के वक्त तो इससे डबल थी। ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸਰਮੁਚੂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ। बात ये है कि असल शख्सियत ही ये है, जो किरदार है वो यही है कि अपनी चीजों से प्यार किया। जिसने अपनी चीजों से प्यार नहीं करना, अपने घर से प्यार नहीं करना, उसने किसी और से या अपने वतन से क्या प्यार करना। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। मैं ये समझती हूँ जुनैद बेटे कि अगर आप अपनी पुरानी चीजों से प्यार कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि वो फिर आपसे प्यार करें। अगर आप पुरानी चीजों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो ये ज़हन में रखें कि घर में एक दिन आप भी पुरानी चीज बन जाते हैं, फिर आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करते। अपनी पुरानी चीजों से प्यार करके आप बच्चों को ये भी सिखा रहे होते हैं कि बुजुर्गों से मोहब्बत करनी। यकीन कीजिए पुरानी चीज को फेंकते हुए दिल को हाथ पड़ता था। अगर वो किसी तरीके से इस्तेमाल के लिए जाया हो जाती थी तो उसे कुछ न कुछ और तरीके से इस्तेमाल में ले आते थे, उसकी कोई और चीज बना लेते थे।
اپنے پرانے سوٹ جو خراب ہو جاتے تھے میں تو انہیں کو کاٹ واٹ کے تو اپنے بچوں کے بنا لیتی تھی. پائے سونے بھی لگتے سن. میرا تے دنداں والا برش خراب ہو جاندہ سی تے میں اودے وال چھل کے تے نالا پونی بنا لیندی سا. گونگی نے تے اپنے جیز دیاں پیڑیاں لے تک سامب کے رکھیاں نے. ایک پیڑی نو تے واشنگ مشین والے پہیے لوا کے اودے تے بہ کے پورے گھر چ بھجی پھرنی. کوئی بھی چیز پھینکنے کا تصور ہی نہیں تھا. اپنی چیزیں خراب کیا پرانی کیا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال میں لاتے رہتے تھے. یہ گھی کے ڈبے خالی ہو جاتے تھے تو ان کو ڈھکن لگوا کے تو ان میں مسالے وغیرہ رکھ لیتے تھے. لیکن ماں جی آج کل جتنے کا ڈھکن لگتا ہے اتنے کا پلاسٹک کے ڈبے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ضروری ہے کہ جو ہم کرتے رہے ہیں وہی کریں. بات تو اتنی صرف کرنا چاہ رہی ہوں کہ پرانی اپنی چیزوں کو جو استعمال میں آ سکتی بے دردی کے ساتھ پھینک نہ دیا ان کو پرانی سمجھ کے نہ پھینک دو. جس طرح بزرگ جو ہیں وہ جتنے بھی پرانے ہو جائیں چلیں وہ دعائیں دینے کے استعمال میں تو آ جاتی ہیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. بیٹے اب گھروں میں تربیت کرتے ہوئے بچوں کو آپس میں میاں بیوی کا ہی ایک کا نہیں ہوتا تو کیا بچوں کو سکھانا ہے. اگر باپ بچے کو جھاڑ رہا ہو ڈانٹ رہا ہو کسی بات پہ فوراً پاس سے ماں بول پڑتی ہے کہ کیوں ڈانٹ رہے ہو اس نے کیا کر دیا ہے. اگر اسی طرح ماں ڈانٹ رہی ہو تو باپ بول پڑتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم تو بیٹی ایسا بالکل نہیں کرتی تھی. اگر باپ کسی بات پہ بچے کو ڈانٹ رہا ہوتا تھا تو پہلے تو یہ ذہن میں آتا تھا فوراً کہ یہ صحیح ڈانٹ رہا ہے. اور اگر غلط بھی ڈانٹ رہا ہوتا تو اس کے سامنے بچے کے سامنے ہی نہیں اس سے جھگڑنا شروع کر دیتے تھے خاوند کے ساتھ. بعد میں خاوند کو بتا دیتی تھی کہ یہ بات ایسی نہیں ایسی تھی. اور پھر خاوند جو ہے وہ بھی بڑی عقل مندی سے اس کو ہینڈل کر لیتا تھا. اب تو بچوں کے سامنے ماں باپ کا ہی اتحاد نہیں ہے ماں باپ کا ہی ایک کا نہیں ہے. ماں جی آپ کے دور میں تو پورا جو محلہ ہوتا تھا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی بچے کی تربیت کرنا. اب تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. ماں باپ نہیں دیکھتے بچوں کو کسی اور نے کیا دیکھنا. میرے بچے تھے پڑھے ہی ہمسایاں دے گھر دے وچ. خاوند میرا بیچارہ بیمار سی منجی نال منجی ہویا سی. میں ایک سکول دے وچ نوکری کرنی سا. مگر اس وقت جو ہمسائے بھی ہوتے تھے نا محلے دار بچے اگر ان کے پاس جاتے تھے تو وہ بھی باقاعدہ اس کی تربیت کا خیال رکھتے. کوئی ایسی چیز جو بچے میں دیکھتے تھے فوراً اسے ڈانٹ دیتے تھے اور بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں ہوتی. بچوں کی تربیت انفیکٹ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوا کرتی تھی. کی کیا سو پتہ نہیں کوئی انگریزی بولی. بات یہ ہے جنید میاں کہ آوے کا آوائی بگڑتا جا رہا ہے. کسی نہ کسی کو سٹینڈ لینا پڑے گا. نہ میاں بیوی کو رسپانسبلٹی کا احساس ہے نہ بچوں کی تربیت کا احساس ہے. اپنی چیزوں سے اپنے بچوں سے اپنے گھر بار سے محبت نہیں کریں گے تو وہاں اس گھر میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی. محبت تو خیر آج بھی موجود ہے لیکن میرا خیال شاید اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے. ہاں چلو ٹھیک کہہ رہے ہو تم. آخر تم نے بھی گھر واپس جانا ہے. ٹھیک ہے خوش رکھنا چاہیے گھر والوں کو بھی مگر بیٹے پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا چاہیے. ایک اور بڑی عجیب سی چیز
घरों में आ गई हुई है जी। खवातीन की आदत में एक बड़ी बुरी आदत बनती जा रही है। बच्चों की तालीम और तरबियत जो है ना जी, हाँ जी, वो हम पहले 1-2 साल घर में ही करते थे। बिल्कुल। अब 3 साल का बच्चा होता है, उसको जाके स्कूल में पकड़ा आती है सिर्फ इसलिए कि मेरी जान छूट जाए, मुझे ना कुछ करना पड़े। हाँ जी, हम भी अल्लाह के फजल से 3 साल क्या 1 साल के बच्चे को ही पढ़ाना शुरू कर देते थे, मगर घर में आपस में सारे लोग बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर देते थे। तालीम के हवाले से भी हाँ जी, कायदा लेके आ जाते थे, उसको फिर बातों बातों में कलमे सिखाना, उसको यसरुल कुरान पढ़ाना, घर में ही उर्दू का अंग्रेजी का कायदा शुरू करवा हाँ देना। जी। तो बच्चा जो है 5 साल का भेजते थे स्कूल में, हाँ जी, उतनी देर तक वो पहली क्लास के लिए घर में ही तैयार कर लिया जाता था। अब तो हम छोटे से बच्चे को ले जाते हैं स्कूल, प्ले ग्रुप है जी, ये अब नर्सरी शुरू हो गई, प्रेप, प्री प्रेप, प्रेप, हाँ जी, प्रेप है, प्री प्रेप है। बच्चा बेचारा उसका वो शऊर ही नहीं पकड़ता, डिप्रेस हो जाता है। शुरू में ही उसको इस तरह बिहेव करते हैं कि वो तालीम में उठ ही नहीं पाता, उसे होश ही नहीं आता। हाँ जी, अब तो माजी जदीद साइंस और एक्सपर्ट्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि 5 साल से पहले बच्चे को स्कूल के करीब भी नहीं जाना चाहिए। 5 साल पुत्र की मैं तो आज तक स्कूल दे नेड़ियों नहीं लंघी। मुझे पता है, मैंने कब कहा कि आप बीकन हाउस की प्रिंसिपल ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਫੈਲ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਅਲਫਨਾਰ ਬੇ ਬੱਕਰੀ ਪੇ ਪੰਖਾ, ਐਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਬੇ ਬੱਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇ ਬੱਕਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਬੇ ਬੱਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇ ਬੱਕਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਬੇ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੇ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ये तो जो बच्चे के ज़हन में बैठ जाए। ये जो गोगी है, ये जब छोटी सी होती थी तो ये अलफनार बे बकरी कहती नहीं थी, ये तो कहती थी अलफ ऐडी बे बोटी, अलफ ऐडी बे बोटी पे पक्की, नहीं बेटे पे पूरी। नज़ीर मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बाहर अच्छा भाईजान, सबसे पहले तो आप सबको पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के हिंदुस्तान के खिलाफ जीतने की खुशी मुबारक हो। जानबूझ के बोला है। अच्छा जी, मैं समझा कि आप कहने लगे सबसे पहले तो मैं आपको 10-10 हज़ार रुपया देता हूँ। नहीं, वैसे इस खुशी के मौके पे हमारा 10-10 हज़ार तो बनता है। खुशी किस बात की यार, जीता न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की वजीर आज़म तो 10,000 रुपया लो, वैसे भी मुसलमानों की बहुत दिलदादा है। जब हमें निकालने के लिए टूर्नामेंट से जब वो इंग्लैंड से हारा था, ये भी तो सोचो ना जरा, बदनीति की किस कदर बुरी सजा मिली है। बल्कि मैं तो यहाँ पे इंडिया को सिर्फ इतना कहूंगा, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, ते सजना भी मर जाना। ओ जिस कप लई तू इंग्लैंड कोलों हरिया, ओ कप इंग्लैंड ने ले जाना। अच्छा, वैसे देखिए आमतौर पे कहा जाता है कि हर टीम ही जो है और उसके फैंस जो हैं, उस मुल्क के रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक अपनी टीम की कारकर्दगी के हवाले से खुशगुमानी का इजहार करते हैं कि जी हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन एक खुशगुमानी में, बकअप करने में और तकब्बुर का इजहार करने में एक वाज़ेह लाइन है जो नजर आती है। किसी भी मुल्क के बारे में ये इल्जाम लगाया जा सकता है जी आप लोगों ने भी तकब्बुर का इजहार किया था, मुजाहरा किया था, लेकिन आप यकीन करें कि आप बिल्कुल न्यूट्रल होके आप सोशल मीडिया पे नजर डाल लें, मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें तकब्बुर जो था वो बकायदा कूट कूट के भरा हुआ नजर आ रहा था। आप जो वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले जो कैप्टन्स का ग्रुप फोटो है उसमें देख लें कि सारे कप्तान बैठे हुए हैं, उसमें जिस अंदाज में जो कोहली साहब तशरीफ रखते हैं और लिखा गया
बाकायदा कोहली साहब के बैठने में उनके अंदाज में एक तकब्बुर था, बजाय इसके कि उनके बैठने के अंदाज को कंडेम किया जाता। हिंदुस्तानी मीडिया ने कहा कि वो किंग स्टाइल में बैठे हैं और हिंदुस्तान क्रिकेट का किंग है, इसीलिए उसको इसी तरह बैठना भी चाहिए। यार अगर तुम उस तस्वीर को गौर से देखो ना तो ये किंग स्टाइल की तो बात छोड़ो, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वो बैठा इस तरह है जिस तरह खल्ला नु लून लाने वाले नहीं बैठे होंगे। खालों को नमक लगाना कहां से आ गया? यार वो इसलिए खिल्लर के बैठे होते हैं, उनको पता होता है मेरे चो बो ये नहीं आउन रही है, मेरे नेड़े किने आना है। और जुबान बार बार कोहली इंज करदा है जिवें सप तो बंदा बनया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह से डरना चाहिए हर वक्त। देखिए, हमने वुसअत ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए हिंदुस्तान के हवाले से ये खुशगुमानी जाहिर की थी कि इंग्लिस्तान के खिलाफ दानिस्ता तौर पे नहीं हारेगा, लेकिन वो अब मैच उठा के देख लें, जो सबसे गैर जानिबदार आदमी है उसको भी दिखा के देख लें वो मैच, वो फौरन उसने ये कहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ कम से कम अगर जानबूझ के नहीं हारा तो वो जीतने की कोशिश भी नहीं की उसने, और पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करके उनकी खुशी इतनी दीदनी थी, ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है पाकिस्तान को बाहर करके। तो जाहिर है कि अगर पाकिस्तान ने इस मौके पे खुशी का इजहार किया है तो बनता है ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, साडा भी बनता है, कल का डांस कर लेंगे। अच्छा, कल से आज तक सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बात करते तो मजा ले रहे हो। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीत के छलांग भी लगाई थी सर। हाँ बिल्कुल, क्रेज होती है ना, वो आराम से ऐसे किया। अच्छा, अब ये देखें कि सोशल मीडिया जो भरा पड़ा है उसमें मतलब बाकायदा मजा लेने वाली चीज है। जाहिर है कि हिंदुस्तानी से चिढ़ रहा होगा और हम ये समझते हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, वो तो जीते बैठे थे और टूर्नामेंट से इस तरह मतलब बेआबरू होके निकलना या एकदम न्यूजीलैंड से हार जाना। मैं कहता हूँ जी, मैच से पहले खिलाड़ियों ने अपने अपने घर फोन कर दिया था, आलू कोफ्ते बना लो, बस आ रहे हैं जीत के। अच्छा, पाकिस्तानियों ने फप्ती कसने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अब बच्चा बच्चा जानता है कि न्यूजीलैंड के रहने वालों को, खेलने वाले प्लेयर्स को या सारों को, वो अवाम को कीवीज कहा जाता है, कीवी परिंदे की वजह से। तो कीवी एक फ्रूट का भी नाम है जो बाहर से उसकी रंगत जो है वो आलू जैसी होती है, लेकिन अंदर से वो काटे तो वो सब्ज निकलता है। परिंदा भी है, फ्रूट भी है। हाँ, परिंदा भी है, फ्रूट भी है, लेकिन कीवीज को कीवीज कहा परिंदे की वजह से जाता है। तो कल किसी मनचले ने ये पोस्ट भी लगाई हुई थी कि हिंदुस्तानी भूल गए कि कीवी अंदर से बहरहाल सब्ज ही होता है। किसी ना किसी तरीके नाल पाकिस्तान ते न्यूजीलैंड जोड़ लिया। हाँ, कल ये भी चल रहा था न्यूजिस्तान, न्यूजीलैंड प्लस पाकिस्तान, न्यूजिस्तान। बल्ले बल्ले बल्ले। मैं कहता हूँ जी कि वहाँ की जो वजीर आज़म कुछ दिन पहले मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा अपना बिहेव दिखा चुकी है, उनकी तस्वीर ऐसे लगी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था कि पाकिस्तानियों फिक्र ना करो, मैं तुमको कश्मीर भी लेके दूंगी। अच्छा भाईजान, क्रिकेट हो या कश्मीर हो, बात यह है कि अगर हमें आगे की तरफ सफर करना है तो उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि हम अपनी बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करें। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, इस हवाले से आज आप मुख्तलिफ चैनल्स पे खबरें, रिपोर्ट्स भी देखते रहे। सूरत हाल बहुत खतरनाक है, बहुत खौफनाक है पाकिस्तान के हवाले से। मैं कहता हूँ जी, कलाशनकोव की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं, पूरे पूरे भ्रष्ट पैदा हो रहे हैं। जिस तरह 70 गोलियों का भ्रष्ट होता है ना, इस तरह आप एक एक घर में जाएं तो अल्लाह माफ करे 13 14 बच्चे हैं। वाकई बड़ा जुल्म है, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, मसला ये है कि दुनिया भर में जाहिर है कि आबादी में इजाफा हो रहा है, लेकिन किस शरह से हो रहा है दुनिया की आबादी में और पाकिस्तान की आबादी में किस तरह हो रहा है, ये देखने की बात। तो दुनिया की आबादी इस वक्त 7.5 अरब हो चुकी है, टू बी वेरी एग्जैक्ट 7 अरब 53 करोड़, ठीक है। और इसमें जो इजाफा है सालाना वो 8.25 करोड़ का है। पाकिस्तान, हम जब भी पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, रोना रोते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में कि पाकिस्तान कहाँ था और तरक्की माकूस का शिकार होके दुनिया आगे की तरफ है, हम पीछे की तरफ है। इस मामले में जब आप टेबल बनाते हो तो ये मेरा ख्याल वाहिद टेबल होगा जिसमें पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है। अच्छा। दुनिया पीछे की तरफ जाने के लिए तगोदो कर रही है, पूरा जोर लगा रही है, अपने वसाइल लगा रही है उस पे कि हम इस लिस्ट में पीछे की तरफ जाएं, अपनी आबादी को कम करें। पाकिस्तान आगे की तरफ जाता जा रहा है, आगे की तरफ जाता जा रहा है। 20 साल पहले हम 7वें नंबर पे थे 14 करोड़ की आबादी के साथ। अच्छा। आज हम 5वें नंबर पे हैं। रूस हमसे आगे था, ब्राजील हमसे आगे था,
रूस 6 नंबर पे था तो आज वो पूरी मेहनत करके 9वें नंबर पे चला गया। हम माशाल्लाह कहां से कहां गए कि हम 7वें नंबर पे थे, 5वें नंबर पे चले गए। हाँ जी हाँ जी। और कोई तवज्जो देखे ना, आप थोड़ा सा अगर तहम्मुल मजाजी से सोचें जी, तो बहुत ज्यादा बिजली पैदा की, अयूब खान ने एडे डैम लगाए, पता नहीं क्या क्या होता आ रहा है, हो रहा है, मगर जिस रेशो से हमारी प्रोडक्शन दूसरी चीजों की है उससे कहीं ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ रही है। इसलिए हमारा बिजली, पानी, गैस, ये वो हर चीज जो है वो आबादी इतनी हो गई है, उसके लिए हम कम ही पड़ेंगे, हर दफा कम होगा, हर दफा कम होगा। यानी जिस रेशो से हमारी इस्तेमाल की चीजें पैदा हो रही हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से आबादी पैदा हो रही है, बढ़ रही है। हाँ। तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे कि अफसोस होता है, हैरान के रह जाओगे कि मतलब इंसान शर्मिंदा होता है इस बात पे कि हम किधर जा रहे हैं, कि दुनिया जो है हर गुजरते साल के साथ अपनी आबादी को पीछे की तरफ लाने में ग्रेजुअली कामयाब होती जा रही है। इवन अफ्रीका के मुल्क जो है वो अपनी आबादी को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। लेकिन पाकिस्तान कैसा मुल्क है कि पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान की आबादी में ज्यादा तेजी के साथ इजाफा हुआ है। पिछले जब हमें नजर आता है कि यार एक शऊर की बेदारी भी है, मीडिया भी अवेयरनेस दे रहा है, कैंपेन्स भी चल रही हैं, उसके बावजूद जो पिछले 5 बरस हैं इनमें हमारी आबादी का जो इजाफा है वो 38 लाख सालाना है। 38 लाख में इजाफा बता रहा हूं, जबकि उससे पहले ये इजाफा था सालाना बुनियादों पे, ये 30 से 32 लाख था। पिछले 5 वर्षों में ये 38 लाख का इजाफा, यानी और तेजी से हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। बड़ी भयानक सूरत हाल है। हालांकि अवेयरनेस जो है इस हवाले से पूरी दुनिया में, इंसानों में क्या जानवरों में भी आ गई हुई है। मुझे याद है बचपन में चिड़िया घर जाता था तो बांदरों का पिंजरा भरा होता था बिल्कुल अमान से, बांदर दूजे ਨੂੰ इधर करके दे अगे लंघदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ मैं गया हां बेचारा 2 मियां बीवी बैठे ने नाल 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, मैं कहो बाकी विआह छड़े गए ना समझ गए, बाकी 2 उनके दुबई चले गए। यार हद हो गई है तुम्हारे लिए। उन्होंने वेल्डिंग का काम सीखिया सी, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आइए जी टेक इट सीरियस, नहीं जी कंट्रोल होना चाहिए। पहले बच्चे नौकरी मिलने दी, देखो और बच्चे जमी जाते हैं। हाँ, असल बात ये, और देखिए ये जो हमारे बास कॉर्नर्स की तरफ से ये आवाज आती है कि नहीं जी आबादी तो अल्लाह ताला का तोहफा है और जो जिंदा कौमें हैं उन्होंने आबादी को अपनी ताकत बनाया है। अल्लाह का वास्ता इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो आबादी जो है वो ताकत है, जो आबादी जो है वो प्रोडक्टिव आबादी है, वो नकारा आबादी नहीं है। आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास खुराक नहीं है, आपके पास तालीम नहीं है, आप नकारा आबादी में ही इजाफा कर रहे हो, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अब पहले आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का कर लें, फिर शौक से बच्चे पैदा कर लें। जी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है बाकायदा, मैंने खुद पढ़ा है, औलाद की तालीम और तरबियत जो नहीं करता वो दोज़खी है, जहन्नमी है। औलाद जो पैदा हुई की है आपने, उसकी तालीम और तरबियत आप पर फर्ज है। और अगर आपसे नहीं हो रही तो खुदा दा वास्ता जे फिर ना बाल जमा यार। अच्छा सर जी, बड़ी हैरान कुन बात है कि रूस इतना बड़ा मुल्क है वो भी आबादी में हमसे पीछे चला गया। हाँ, रूस 20 साल पहले जब 7वें नंबर पे था तो उसकी आबादी जो थी 14 करोड़ 70 लाख थी। आज 9वें नंबर पे गया है तो उसने आबादी अपनी वही ना कि 14 करोड़ 70 लाख पे उसने आबादी मेंटेन की है। पहले नंबर पे जाहिर है चीन है, फिर हिंदुस्तान, अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान का नंबर आ गया अब, जो पहले 7वें पे था। अब ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और 10वें नंबर पे मैक्सिको है। बड़े बड़े मुल्क हैं, वो हमसे पीछे हैं। हाँ जी, ये बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल बन गई हुई है। मुझे अच्छी तरह याद है एतजाज एहसन साहब की जो बेगम साहब है बाजी बुशरत जी जी जी, वो एक दफा मुझे एक तकरीब में मिली तो मुझे कहने लगी कि ये काका तेन मैं एक गल दसा, इस मुल्क का सबसे बड़ा और खतरनाक मसला सिर्फ आबादी है। पढ़ी लिखी खातून है, उन्होंने अपना एनालिसिस जब बताया तो मैं कितने दिन सोचता रहा कि यार रोने हम इधर उधर के रोते रहते हैं, ये तो बहुत पीछे चला गया हुआ है ये वाला इशू। हालांकि कुछ साल पहले आपको याद होगा बड़ी टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट इस हवाले से और इस हवाले से बहुत सारे पैगामात, और बल्कि मैडम नूर जहान ने गाना इस पे बनाया गया। हाँ जी, बड़े बड़े लोगों ने इसके हवाले से
मैसेज दिए लोगों को, एजुकेट करने की कोशिश की, अब बिल्कुल ही ढिले पड़ गए हुए हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की आबादी 2.5% की रेशो से बढ़ रही है, और अगर यही 38 लाख का इजाफा होता रहा 2.5 के साथ, तो 2025 तक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 26 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। 26 करोड़ से बल्ले बल्ले बल्ले, इंतहाई संगीन सूरत हाल हो जाएगी। अच्छा, सारे पाकिस्तानियों को मुर्द इल्जाम नहीं मेरा ख्याल ठहराना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस है, वो बच्चों की पैदाइश के हवाले से भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इसको बाइस फख्र समझते हैं। मतलब अगर पूरे मोहल्ले में कोई एक हाजी साहब होते हैं, पूरे मोहल्ले में 2-2 बच्चे होते हैं, उनके यहाँ 12-13 बच्चे होते हैं, बाकी सारों की एवरेज खराब करवा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक बात। और दूसरों को कह रहे होते हैं कि बहुत गुनाह है, बच्चे पैदा होते रहने चाहिए, बड़ा स्वाब होता है। ऊपर से फखर से बता रहे होते हैं मेरा 1.25 मरले का घर और 14 बच्चे हैं मेरे। हाँ जी, हाँ जी। बंदा पूछे भाई जी तुसी 14 भी छड्डो, हाँ बच्चे 14 बाहर कड्डो, ते 1.25 मरले दे घर च 250 चूजा पाओ। और अजीजी एक खतरनाक बात और कि जिस घर में भी ये 13-14 बच्चे होते हैं ना, बड़े बदतमीज होते हैं। हाय हाय हाय, भाई कहां से उनको अकल सिखानी है, बच्चे ही इन्हें एक फड़ो ते दूजा दौड़ जाता है, दूजा फड़ो ते तीजा निकल गया, तीजा फड़ो ते चौथा मंजी थले वड़ गया। यहाँ पे चलेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। 1 लाख रुपए का आईफोन अगर चोरी का हो तो आप 10,000 रुपए में खरीद लेते हैं। और जाने दो भाई, तुम तो ना आईफोन की बात करो, बाऊ जी ये को एडा पुराना टेलीफोन जे उत्ते 28 को रबटा चढ़ियां ने। ये वैसे देखा तो है मैंने, इसका फोन देखे तो लगता है कि बैट पे तंदी कराई हुई है। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के सलामती कटहरे में एक ऐसा किरदार खड़ा है जिससे आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको वास्ता ना पड़ा हो, यानी मोबाइल रिपेयर करने वाला एक दुकानदार। वाह 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 वाह, मैं भी कहूँ इस बच्चे की शक्ल चार्जर से क्यों मिलती है? चार्जर से नहीं यार, चार्जर की पिन से मिलती है। यार इसको तो मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था। होए 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 होए, इस वक्त जितने बेईमान इस शोबे में बंदे हैं ना, और शोबे में कम ही होंगे। ये इससे पहले कि इस पर डिस्कस की जाए, ये कहते चले कि लाजमन इस शोबे में भी अच्छे लोग हैं, मगर चंद बिल्कुल ही चंद। तुसी ते खैर चंदल कदी ध्यान ही नहीं देता, तुसी ते जेड़ी शाही वेंदे हो थोक सी वेंदे हो। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि मेरा एक दोस्त है जो आईफोन अफोर्ड करता है। अच्छा। उसने मुझे बताया कि ये सिर्फ जो चार्जर है ना, आईफोन का चार्जर, जो उसकी एक्सेसरीज होती हैं, हाँ जी, चार्जर हुआ, उसका ये अपना टकन शकन हो गया, ये वो इस तरह की जो चीजें हैं ना जी, उसमें ही ये इतनी बेईमानी करते हैं कि उस ओरिजिनल और 2 नंबर में पैसों का बहुत फर्क है। जब इनके पास फोन आता है ना जी, बिकने वाला भी नया आईफोन, जी जी, तो उसमें से उसकी एक्सेसरीज निकाल के असली वाली जेन्युइन, उसमें 2 नंबर डाल के फिर पैक पुक करके तो रेट देते हैं। क्यों जी? ओ नहीं भाईजान, ये मोबाइल का रेट सब्जी की तरह रोज निकलता है। अब वो देखे तो सही, खराब होने वाली चीजें हो रही हैं। रोज रेट निकलते हैं, मोबाइल है कि ब्रायलर है? और बाबू जी आप चेक कर सकते हैं, ये निकलते हैं सारा कुछ प्राइसेस प्रूसेस। ये कहो कि खुद रोज निकालते हो रेट अपनी मर्जी का। नहीं, इसका मेरे इतराज से क्या ताल्लुक है? मैं तो कह रहा हूँ कि चीजें 2 नंबर डाल देते हो, असली वाली निकाल के फोनों में से। और नहीं बाबू जी, आप देखें ना, आप इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको नहीं पता लगेगा कि ये जेन्युइन पुर्जा कौन सा और फेक पुर्जा कौन सा। ये पता लगता हो तो आप ऐसी हरकत करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पाजनैत जो 2 नंबर की इतनी अच्छी फिनिशिंग होती है कि वो 1 नंबर लगती है। ये एग्जैक्टली इनका तरीका वारदात भी यही है कि एक इंतहाई नाकिस क्वालिटी की 2 नंबर चीज है और दूसरी जरा अच्छी क्वालिटी की 2 नंबर चीज है। ये देख लेते हैं कि ये बंदा अफोर्ड कर सकता है, मोबाइल कौन सा है उसके पास। अगर महंगा मोबाइल है तो समझ जाते हैं कि जैसे ही मैं कहूंगा जी असली डलवाना है, असली चार्जर लेना है, तो वो कहे हाँ जी मुझे असली लेना है। तो ये उसी को एक नकली कोई भी चार्जर हो या कोई चीज हो, ये नकली को असली की कीमत में बेच दे। बाबू जी इसका इल्जाम लगाना तो चाइना को लगाएं, हंगरी को लगाएं, मलेशिया को लगाएं, जो 2 नंबर पुर्जे निकालते हैं। तो
2 नंबर चीज को 2 नंबर कह के बेचो ना, कस्में क्यों खाते हो कि ये ओरिजिनल है? ਉਹ ਭਾਈ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ, ਹੰਗਰੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ओए, वो हंगरी मुल्क में नहीं होता, वो हंगरी होता है, वो भूखा होता है। आप लोगों ने जाके इन मुल्कों में 2 नंबर चीजें बनाने की उनको आदत डाल दी है, इतनी खरीदी है आपने। आप लोग जाते हो वहां पे, या जो भी आपका माल सप्लाई करने वाला बंदा है वो उधर जाता है, वो जाके उधर साफ साफ कहता है भाई जी ए चार्जर जेड़ा है फलानी कंपनी दा ये है 2000 का, इसी तरह का चार्जर इसी कंपनी का मिल सकता है अपना कोई 200 का? वो कहता बिल्कुल मिल जाएगा, अभी आपको निकाल के देते हैं। उधर से टोकरा भर के ले आते हैं, इधर हमें दे दू के मार छड़ के तो उसके पैसे वही 2000 के हिसाब से ले जाए। अच्छा, एक और इनकी वारदात ये है, आपका मोबाइल गिर जाता है, आवाज आना बंद हो जाती है। होता ये है कि स्पीकर को सिर्फ इन्होंने एडजस्ट करना होता है, आपको तो नहीं पता क्या हुआ। स्पीकर को एडजस्ट करने के, सिर्फ टच करने के ये 500 से 1000 रुपए तक ले लेते। हाँ जी, जिस काम में भी आपको मालूम नहीं है, ये घड़ी है, ये ठीक करानी, फ्रिज है, एसी है, घड़ी, फ्रिज एसी का तो चलो लोगों को काफी हद तक पता चल गया हुआ ना, गड्डी है, कार है। अब भाजनैद बेचारे ने तो थल्ले वड़ के नहीं ना देखना कितना खराब है। नहीं सीरियसली, अब भाजनैद थल्ले वड़ा और ऊपर से लोग कह रहे होंगे यार हसबे हाल गड्डी थल्ले चल रही है, टीवी तो नहीं सी चल रहा। सबसे ज्यादा क्या देखो किसने लगाया है, जो जैक भी लगा हो तो गाड़ी के नीचे नहीं घुस सकता। तो बात ये है कि बेईमानी इसे ही कहते हैं कि अगले की आंखों में मिर्चें डाल के वो धूल झोंक के तो आप वो काम बहा जाएं जो नहीं करना चाहिए। बाबूजी मेरा तो निका सारा खोखा है, उसको कहें जो उधर से कंटेनर बुक करवाते हैं। तेरा निका सारा खोखा भी तू गलत पाया यार, तेनू चाहिए तू चिड़ी दे घोंसले च बह के फोन सही करे। अच्छा भाईजान, इस बात का आप क्या जवाब देंगे जो आप चोरी के मोबाइल खरीदते हैं और चोरी के मोबाइल बेचते हैं? बाबूजी हमें क्या पता कि जो फोन बेचने आया उसने चोरी किया या छीना, हम तो लिहाजा एहतियातन उसके फोटोकॉपी लेते हैं शनाख्ती का। तुम्हें नहीं ना पता? जी नहीं। तेरे कन्ना ते 2 छड़ियां तेनू लग पता जाए। सब कुछ पता होता है आप लोगों को, आप झूठ बोलते हैं, इसीलिए तो आप सस्ता खरीदते हैं फिर उससे। आपको पता होता है इसके चोरी का माल है, और बाकायदा ये चोरी के फोन इकट्ठे करके बेचने वाले लोग मौजूद हैं आपकी मार्केट। हाँ जी, उनको अंदर होना चाहिए बाबूजी। तेनू नहीं होना चाहिए, तू सीखा जो निकल हमने बाहर। 1 लाख रुपए का आईफोन अगर चोरी का हो तो आप 10,000 रुपए में खरीद लेते हैं। अब जाने दो भाई, तुम तो ना आईफोन की बात करो बाबूजी, ये देखो एडा पुराना टेलीफोन जे उत्ते 28 को रबटा चढ़ियां ने। ये वैसे वेख्या तो है मैंने, इसका फोन देखे तो लगता है कि बैट पे तंदी कराई हुई है। सर फेक बैटरीज के नाम पर सबसे ज्यादा कमाई करते हैं ये। बिल्कुल, इन्होंने मेरा ख्याल है कोई पार्ट ऐसा है ही नहीं। टेलीफोन के गुर्दे, कलेजी, फिफड़े, हर शायद 2 नंबर इन्होंने निकाल ली हुई है। इन्होंने क्या निकाली है, चाइना ने निकाली है, ये इधर बेचते हैं। मैं कहता हूँ कोई बुरी बात नहीं, मगर आपको बताना चाहिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये आईफोन का असली चार्जर है, ये आईफोन की असली बैटरी है। बैटरी तो इसकी होती नहीं मेरा ख्याल है, सॉरी। बता के इनको बेचना चाहिए कि ये असली है, ये असली नहीं है। दोनों ही चाइना के पावे। मैं कहता हूं कि सारे फोन चाइना में ही बन रहे हैं। बिल्कुल। मगर ये है कि असली कंपनी का और दूसरा जो है वो उसका फर्क लोगों को बताना चाहिए। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर गंदम गीली है तो उसको नीचे न मत छुपाओ, उसको ऊपर करके बेचो। लोगों को पता हो भाई गंदम गिल्ली है, जिसने लेनी है ले ले, जिसने नहीं लेनी ना ले। इसलिए बेईमानी आपके काम में बेहद है, और अल्लाह को डरो। दोयख बहुत डाढ़ी है, अल्लाह सबको बचाए, अल्लाह सबको बचाए। तेरे लिए तो माचिस की तीली बड़ी है। और सर जी हम नहीं है 2 नंबरी काम करते। लो जी, जाते ही सबसे पहले तो यरा सा अगर फोन किसी तरीके से बंद हो जाए, इन्होंने ये जरूर कहना होता है जी पैनल चेंज हो। पैनल चेंज हो। ओ भाईजान, अब वो छोटे छोटे बच्चों को आप कीमती फोन दे देते हैं, वो बेड से फेंक देते हैं, सोफे के नीचे गिरा देते हैं, जरा जरा से पुर्जे होते हैं, फिर पैनल तो बदलना पड़ता है। भाजनैद इसी तरह टेलीफोन की मरम्मत में बेइंतहा बेईमानी करते हैं। नए फोन की खरीदो फरोख्त में भी बहुत बेईमानी आ गई। उसमें भी पूरा फोन 2 नंबर भी है और असली भी है। मैं कहता हूँ कि जिस कंपनी का है ना
उसी का कह के बेचना बेचना चाहिए। आप ये मत कहें कि भाई जी ये फलानी कंपनी का असली मोबाइल है, हो वो 2 नंबर। अच्छा, आप किसी वक्त इनके पास फोन लेके जाते हैं, हमें हल्का फुल्का ही उसका नुक्स होता है। हाँ जी। ये सीधा कह देंगे जी ये तो बेकार हो गया, हल्का सा फेंकेंगे आपके सामने, जैसे वाकई आपको लगना लग जाएगा कि बेकार है। हल्का सा उसमें नुक्स है, कह देंगे जी ये नहीं ठीक हो सकता, अब जाया हो गया। आप फिर कहेंगे कि यार इधर कुछ करो, ये स्पेयर पार्ट ही है, चलो दो 500 तन दे देने संदे से, हम इसके स्पेयर पार्ट कहीं और इस्तेमाल कर, वही 500 का आपसे लेके इन्होंने 5000 का बेच देना। सर जी ऐसी बात भी नहीं है, अब लोग सियाने हो चुके हैं, मोबाइल को सिर्फ तारे लगाएं तो बता देता है सही है कि खराब है। संतरी साहब, यस सर। इसके कानों पे तारे लगा के देखो ये सही है कि खराब है। तार इनू बाद चलावांगे, पहले इनू वैसे 4 ला के देखना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, आज मैं बात ये करनी चाह रहा हूँ कि किसी का नाम बिगाड़ना जो है ये तो बहुत बुरी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मगर कुछ लोग प्यार से नाम रखते हैं जिसे हम निक नेम कहते हैं, वो प्यारा लगता है, वो कोई ऐसी बात बुरी नहीं है, वो किसी वक्त मजबूरन भी रखना पड़ता है। अब नाम जरा लंबा हो तो इसको प्यार से कुछ और रख लेते हैं, या वैसे ही बच्चा पोपलू हो, ये टैप लग रहा हो तो वालिदैन के मुंह से प्यार से कोई नाम निकल नहीं। रालू जी, रालू रालू नहीं, गोंगलू। रालू कहते थे तुम्हें तुम्हारे उस्ताद फखरी वो साहब। तो तुम्हारी बात ठीक है यार, बताने वाली बात तो नहीं ना होती। अच्छा, ये जो निक नेम होता है ना, ये प्यार से जो रखा होता है दूसरा नाम, ये अक्सर अजीज अकारब या वालिदैन रख देते हैं, या कोई भी फूफी चाची ताई रख देती है, वो फिर चल निकलता है। मगर जो छेड़ होती है ना, जिसे हम नाम बिगाड़ना कहते हैं, ये खास तौर पे वो लोग रखते हैं जिन्ना दी ओदे नाल लग दी हुंदी। अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात यह है कि हमारे मुआशरे में शर्मो हया और खामद की इज्जत जो है ये बहुत माशाल्लाह पाई जाती है। और जरा हालात बदल गए ने मगर थोड़ा सा पीछे ध्यान मारे ना तो याद आता है कि वाकई यार खवातीन जो हैं वो बहुत इज्जत करती थी अपने खामदों की, और उनका नाम तक नहीं लेती। उनको मतलब उन्होंने मेरे उन्होंने कहा था, या फिर सुनिए, लगता बंदा बोला है, कह रहे ने सुनिए, या फिर अपने किसी बच्चे के नाम से के पप्पू के अब्बू। अच्छा, तुम तारीख उठा के देखो, हमेशा शौहर को यही कहा है, नाम भी यही रखा है, सुनिए, कभी कहने को भी नहीं कहती, बोलिए, सुनिए, यू आर मेंट फॉर दिस। आप सिर्फ सुनने के लिए निकाह में बंधे हैं, सिर्फ सुनिए, कभी नहीं कहा बोलिए। यानी निक नेम में भी एक राज पिन है, जो एक मजलूम खामद ही बेचारा निकाल सकता है। और इस तरह के नाम जो हैं ये बड़े पॉपुलर होते हैं, बिल्कुल खामद का नाम नहीं थी लेती खवातीन। अच्छा, इस हवाले से कोई ये माजी की बात नहीं है, आज भी गैलप वालों ने जो सर्वे किया है उसमें ये बताया कि हमारे यहाँ आज भी 48% खवातीन अपने खामद का नाम नहीं लेती। अच्छा। और इन 48% में 21% खवातीन जो है वो खामद को उसके पेशे के हवाले से बुलाती है। अच्छा। डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, मिस्त्री जी, वकील साहब, इस हवाले से पता नहीं एंकर साहब कहती है कि नहीं। मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सरताज ही कहती है। वाह, तो जी सीरियस बताएं कि भाभी आपको क्या कहती है? सच सच बता दूं? बिल्कुल। यार, मेरी बेगम मुझे नेद जी कहती, अच्छा। यानी जुनैद का जीम निकाल के अपने जूते की जीम में डाल। यानी इस भाई ने अपनी भी इज्जत नहीं बढ़ाई, साडी तो बेइज्जती करान ही दे। अच्छा जी, इनमें 12% जो खवातीन हैं हमारे यहाँ वो आज भी यही कहती हैं, सुनिए,
अजी क्या कहने हैं, अजी पप्पू के अब्बू, अजी मुन्ने के अब्बा, यही कहती हैं। जी। अच्छा, 9% खवातीन उनके उर्फी नाम से बुलाती हैं, मतलब भट्ट साहब, मियाँ साहब। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, अपना ख्वाजा साहब, ख्वाजा मौलवी साहब, मीर साहब। डार साहब गल सुनो, मीर साहब इधर आना। अच्छा, जो सबसे कम एवरेज है ना जी। खवातीन की, हाँ जी। वो प्यार से बुलाने वाली, यानी प्यार से कोई निकनेम रखा हुआ है, जैसे अजीजी जान या अपना कुकू जी या अस्सू, आसफ को अस्सू या परवेज को पेजी। ये सिर्फ 10% है, बाकी सारी जालिम ही ने। जैसे रमजान को मन्ने। हाँ जी, 48% तो ये सारी हैं मिल मिला के। हाँ जी। और 52% ऐसी लड़कियां हैं, खवातीन हैं हमारे यहाँ, जी जी। जो नाम सीधा लेती। अच्छा। अफजल बात सुने, हाँ। असगर बात सुने, सीधा नाम लेने वाली जो खवातीन, उन ज्यादा सीधा हो गई हैं। सीधा ही है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। यार हमारे गोगा जी की बेगम बहुत प्यार से बुलाती है, नाम रखा हुआ है अच्छा। टुट पैने। एक चीज टूटने वाली है ही नहीं, भावे थोड़े मारो ये भी टूट पैना। ले भाई, आज तुम्हें एक टिप दे रहा हूँ, अब तुम्हें पर जाई के ना वे टुट पैने आ, तो तू टुट के खिलर जा सारा, अब इकट्ठा कर दी फिरेगी। अच्छा जी, ये तो हम अपने यहाँ की बात कर रहे जी। थे। अमेरिका में जो एक सर्वे हुआ है पूरी दुनिया के हवाले से, जी। उसमें यह बताया गया है कि 88% यानी 88% खवातीन जो हैं, हाँ जी। वो खामदों को इसी तरह निक नाम, लाड प्यार, ये वो से बुलाती हैं, असल नाम से नहीं बुलाती। 88% खवातीन। वाह। जे सारियां गोरियां भी पा लईए तो फिर एवरेज बढ़ जाती है लाड प्यार वाली। अच्छा, निक नेम के हवाले से भी एक बड़ी खतरनाक सर्वे है जी। क्या सर? अगर औरत का मूड अच्छा हो तो वो निक नेम प्यार वाला या क्यूट होता है। अच्छा। अगर मूड अच्छा ना हो तो ओही निक नेम फिर जड़ा वो जानवर दे नाम च बदल जाता है। जैसे प्यार से कह रही है बब्बू और गुस्सा चढ़े है वे बगियाड़ा। यार बेगम शौहर को जिस नाम से मर्जी बुलाए, निक नेम से बुलाए, असल नाम से बुलाए, उसके दिल में जो छुपी हुई मोहब्बत होती है ना, वो एक जैसी होती है। यानी प्यार आया हुआ है तो कह रही है कुकू, मूड खराब है, कूड़ मगज। अच्छा, निकनेम की रवायत जो है वो फेसबुक ने भी अक्सर बदल के रख दी। हाँ। अब हम अपना निकनेम खुद ही रख लेते हैं, हाँ जी। यानी असली नाम की बजाय हम अपने निकनेम यानी जो बड़ा हमें पसंद है खुद ही, हाँ। वो रख लिया हुआ है। किसी ने डैशिंग बॉय रखा हुआ, किसी ने सनी, किसी ने कूल मैन। अमन से मैंने देखा है कि गौरियर के बंदियां ने लिखे है कूल मैन, जिद्द कोलो लंगो तो से कौन लिया। दीदी मेरा कसूर नहीं, पूरी दुनिया में वेदर चेंज हो रहा है। अच्छा, एक सर्वे ये भी बताता है कि लड़कियों के निकनेम जो होते हैं वो ये क्यूट होते हैं। हाँ जी। बिल्लो, हाँ जी। गुलाबो और गुड्डी, परी, चिंदी, नूरी। क्यूट होते हैं। और लड़कों के निकनेम असलम साई, दीमा कुकड़, जवेद टोड, असलम तेली। ओ या अल्लाह, खुदा दे वास्ते मुबशर मडगाड। हाँ जी, पूरे शेर बनाए होते ने, असलम साई, अदरनाई। हाँ, बड़े बड़े अजीब नामों से पुकारते हैं, रवाये कसते रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, इस हवाले से अगर कराची की तरफ चले जाएं तो निकनेम ज्यादा हंसी वाले हैं। अच्छा। पहाड़ी, लंगड़ा, चिमटा, गुलेल, पसीना। बंदा पूछे ये कौन से नाम है, जेडी चीज सामने देखे वो नाम रख देते हैं कि ये यही है। लकड़ मंडी, अदरक। हाँ हाँ, मैंने खुद सुना है, उजैर अदरक। मैं कह यार तुम तो जाके बंदर के पिंजरे के कह सकते हो, बंदर क्या जाने उजैर का स्वाद। जुनैदा जिन, डड्डू, आड़ू ग्रेनेड नहीं।